से करुणाकर, से दिव्य पुरुष, से त्राणकर्ता, से उद्धारकारी, से जगन्नाथ, से लीलामय, से तो हर्ता कर्ता दैव विधाता सारा ब्रह्मांडर। से असंभव को क्षणिकरे करिपारନ୍ତି संभव। तांकु बुझिबा जेतिकी काठिकर पाठ, जानिबा सेतिकी चकित कला भଳି। घोषयात्रा अवसर तांकु कोटि दंडवत। आजिर ए अनुभूति आपण शेष जाए शुणु। महाप्रभुଙ୍କ लीलाକୁ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ନଇଁ ଆସିବ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ, ତାର ସେଇ ଚମତ୍କାରିତା ପାଖରେ। ଆଜକୁ ଠିକ୍ 17 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଲୋମକୂପ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ମାଧବ ବାବୁ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର କିନ୍ତୁ କଳାହେରାର ସହର ତାଳଚେରରେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ରହନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ସୁବିଧା ବାହାର କରି ମାସକୁ ଥରେ ଅଧେ ଘରକୁ ଯାଇ କୁଣିଆ ଭଳି ବୁଲି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ମାଧବ ବାବୁ। ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଆସେ। ଗଧ ଖଟଣି ଖଟି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପଶେ। କାରଣ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ଓ ବୋଉର ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀର ମାନ ଅଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଉଣୀର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ବରାଦ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାଧବବାବୁଙ୍କ ଚାକିରି କରିବାର ଏ ଭିତରେ ଯୁଗଟେ ବିତିଗଲାଣି। ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିଲେଣି। ପରିବାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ସରିଥାଏ। ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାଘର ଏଯାଏଁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଭଉଣୀର ବୟସ। ଝିଅର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କେମିତି ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ତୁଟାଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ବାପା ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ପକାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମାଧବବାବୁ ଅନେକ ସମୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଭାରି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ସାନ ଝିଅକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ, କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭାଗ୍ୟରେ କେଜାଣି, କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ହେଲେ ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନି। ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ ବୋଉ ମନେ ମନେ ଗପୁଥାଏ। କେବେ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେଇ କାନ୍ଦେ, ନେହୁରା ହୁଏ, ଆମକୁ ଲୁଚେଇ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛେ। କେତେ କ'ଣ ଭାବେ। ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ମାନସିକ ରଖେ। ପୂଜା ପାଠ ଦାନ ଧର୍ମ କରେ ବୋଉ। ମାଧବବାବୁ କହନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଥିଲ ବୋଉ, ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାର ବାହାଘର ହେବ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଉ। ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ବାପା, ମା, ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଥର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଧବବାବୁ। ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତେନି, ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେନି। ଥରେ କି ଦିଥର ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଜଗାର ମହାପ୍ରସାଦ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଭଉଣୀର କଥାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଗଲେ ମାଧବବାବୁ। କିଛି ବି କହିଲେନି, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସାନ ଭଉଣୀଟା ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ହଁ ତୁଟା ନାସ୍ତିକ, କାହିଁକି ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରି, ନ ଯା, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଗିବେ। ଜଗାର ମାୟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ତୁ କିଛି କହୁନୁ, ଦେଖିବୁ ସମୟ ଆସିବ ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମାଧବବାବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗହଳି ଚହଳି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହୋହାଲ୍ଲା ପଶିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯେଉଁ କେତେଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଅଦୌତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାଭାଷା, ଇଙ୍ଗିତ, କଟାକ୍ଷ ମାଧବବାବୁଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବେତମାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଏପରିକି କେତେଥର ଦର୍ଶନ ନ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ମାଧବବାବୁ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ। ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଜଗତର ନିୟନ୍ତା, ତୋ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତୁ ନୀରବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଅନେଇ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କ୍ଷୋଭ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଯେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମାଧବବାବୁ। ତା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଉଣୀର ନାସ୍ତିକ କହି ଛିଗୁଲାଇବାଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ମାଧବବାବୁ ଭାବିଲେ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଥରୁଟେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଆଣିବେ ଜଗାକୁ। ତେଣୁ ଭଉଣୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପୁରୀରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଭଉଣୀର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଶୀତ ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେବ। ଭଉଣୀର ମନ ରଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ମାଧବବାବୁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଦୁଇ ଭଣଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯିବେ।
परिवार 7 जन सदस्यों को नहीं बाहरिले श्रीक्षेत्र अभिमुखे। पुरी जावाक सुरक्षित थिला ट्रेन यात्रा, कारण से ही ट्रेन पुणी अपराह्न पुरी तालचेर फेरुथिला। एथर तालचेर आरंभ है यात्रा। भोरू समस्ते प्रस्तुत हो घर बाहरी थर्माल स्टेशन को, जो टिकेट काटी सीधा सड़क पुरी जाऊा ट्रेन रे बसिले। बो भौणी जगह को देखिए बोली बहुत खुशी थे। छोट थिबा दुई भणजा समुद्र रे गाधेबे बोली कही सारिथिले। बो कोठी गाड़ी अटकी गले लोकों भिड़ भितर भी जगन्नाथों उद्देश्य हाथ टेकी देउथिला आउ कहूला जगन्नाथ हे जगतर कल्याण हेउ। एतिकी बेले ता मुहरे गोटे अजब आनंद देखा जाउथिला। स्टेशन पर स्टेशन नहीं पुरी रे ट्रेन पहुँचला बेल को मध्याह्न होगा समय। दुई भणजांक आग्रह देखि प्रथम महोदधि बुड़ पकाइବାକୁ पहुँची सपरिवार समुद्र कूल। सेठी जथा तथा गाधोया काम सारी मंदिर रे पहुँचला बेल को पहड़ समय हो आसताए। कौन टिके भोग धरी समस्त को नहीं भीतर को चलले माधव बाबू। भिड़ जे भिड़ जनसमुद्र भीतर को जीवाई साहस कूल न थाए। कौन करेंगे एते बाटर आसछंदी जगा दर्शन पाई, दर्शन न कराई फेरिवे केमती। तेणु जेन तेन प्रकार माधव बाबू आगर रही समस्त को बाट कढ़ी नेले भीतर को। मझिरे रहिले बड़ भौणी और सान भौणी, पछक रहिले दुई भणजा। सभा पछरे आसिले भिणई महाशय। भिड़ काटी काटी भितर पहुँचला बेल को ठेला पेला जो गोटे लहड़ी जमती माड़ी आसला। खसी पड़ू पड़ू जमती समस्ते रहीगले। माधव बाबू पछक चाहिला बेल को ना भौणी ना भिणई ना भणजा केही नथिले। कुआडे गले समस्ते एईने एइठी थिले। तांकर चिंता बढ़ीगला। चारि पाखक अनेइले लोकों भिड़े क्या जनकू भी देखा पाइलेनि। मने मने बहुत विरक्ति हेले। कहले जगन्नाथ एइथिपाई तुम पाख आसिया को इच्छा हुएनि। जेतेबेले आसीबो शांति रे दर्शन करि हेबोनि। तुम पाखक आसी भूल हेगला। शह शह मुंडमाल भितर निज लोकों खोजिबे केमती। आखि पहरेई नेले मुंडमाल उपरे, किछि लाभ हेलानि। पछकु जाई गोटे कांथरे ढीरा देई लोकों उपरे नजर रखिले। पहड़ समय होउथाए, भितर को आउ श्रद्धालु छाड़ु नथांती सुरक्षाकर्मी। किछि समय भितर भिड़ भांगिले सेमाने केउठी जणा पड़िजिव भाबी लोकों फेरंता रास्ता को अनै रहिले। धीरे धीरे श्रद्धालु बाहरु थांती, अथच परिवार लोकों देखा नाही। अस्थिर होई पड़ुथांती माधव बाबू। जीवे कि रहिबे भाबुथांती, निष्पत्ति नहीं पारुथांती। हठात रत्न सिंहासन आड़ू बाहर को बाहरी आसिले तांको परिवार समस्त सदस्य। सेमानंको मुहरे थिला खुशी खुशी भाव। भौणी और दुई भणजांकर कि आनंद। माधव बाबू सेमानंक उपरे विरक्त हो कले, मो पछरे समस्ते थिल, भीतर को केमती पळेल? ए भिड़ पाई एठाको आसिया मते भल लागे ना। सामान्य दर्शन करिया पाई झाळ बोहाय पड़ुछि। समस्ते भलरे रत्न सिंहासन श्रीजीव को दर्शन करिया कथा कहया परे माधव बाबूंको राग टिके शांत होला। मात्र निजे दर्शन करि न पारियार क्षोभरे जगन्नाथंक उपरे मने मने बहे असंतोष व्यक्त कले। आउ निष्पत्ति नेले एइटा थिला तांको जीवनर शेष श्रीमंदिर आसीबा। पृथ्वी प्रलय हेले भी आउ आसबेनि ए जगह पाखक बड़दाण्ड को। श्रीमंदिर बाहरी माधव बाबू समस्त को नहीं गले आनंद बजार। निज इच्छा मुताबिक समस्ते महाप्रसाद सेवन कले, टंको तराणी पीले, भोग किणाकिणी कले। भौणी मनरे अफुरंत आनंद। एबे घर को फेरिबार समय। बड़दाण्डर ऑटो धरी स्टेशन पहुँचला बेलू जना पड़ा ट्रेन स्टेशन में लगी सारी। मात्र लाइन क्लियर नथिबार ट्रेन छाड़िबारे विलंब हेबो। समस्त को ट्रेन में जाई बसवा कही टिकेट किणिया बाहर माधव बाबू। मात्र दुई भणजा कहले मामू शोष लगुच, ठंडा पानी धरिकी आसब। टिकेट करिया परे माधव बाबू दुकान पानी बोतल किणिले। दी हाथ में 4टा पानी बोतल धरी ट्रेन पाखरे पहुँचले। किंतु सेमाने सब गले कुआडे? बगी पर बगी एमुंडर से मुंड जाए खोजी पकड़े माधव बाबू। केउठी भी सेमाने को पाइलेनि। व्यस्त न होई भाविले बोधे किणाकिणी करिया को स्टेशन बाहर को जाइथिबे। किछि समय अपेक्षा कले, तथापि सेमानंकर देखा साक्षात हेलानि। पुणी आउ थे बगी पर बगी खोजीगले। सबु बगी रे लोक भर्ती हो गलेनी। सेमाने को बगी नाहांती। मोबाइल को बारंबार फोन लगाइले। समस्त फोन नॉट रिचेबल कहला। माधव बाबू ये करेंगे कौन? ताको मुंड काम कलानी। चारिआडे को नजर पकईले काले अन्य ट्रेन में बसीगले कि। देखला बेलू स्टेशन में कौन ट्रेन हल्ट करूना। माधव बाबू धीरे धीरे अस्थिर हो पड़ुथिले। कौन करेंगे कौन करेंगे मुंड घूरे पकाउथाए। तांको मुंडरे केते कौन कथा आसी जाउथाए। स्टेशन माइक रु घोषणा हला ट्रेन छाड़िबा समय। एथर अधिकरु अधिक व्यस्त हो पड़े माधव बाबू। उपाय न पाई बगी रु बगी को धाइबा को लागिले। तथापि केउठी भी सेमानकर देखा मिललानी।
तन्न तन्न कर देखला पर भी से कुआड़े गले। पुणी मोबाइल को फोन लगाइले। समान ढंग से नॉट रिचेबल कहला। माधव बाबू भाविले टिकेट भला से हाथ में थिले चिंता न था। से माने जाइथांदे तांको पाखरे एबे टिकेट नाही। जदि कौनसी बगिरे टीटीआई चढ़ी से धरे हैरान हेबा थय। व्यस्त विव्रत हो पड़े माधव बाबू। गम गम झाड़ बोही जाउथाए। बोतलरू पानी पी चलती। कौन करेंगे क्या कहे भाबू भाबू तांको मन को गोटे बुद्धि आसला। एका निश्वास स्टेशन अनाउंसमेंट आड़ को धाइले। सेठार तांको असुविधा कथा कहले। अनाउंसर जनक माधव बाबू को कहवा अनुसार जन जन कर समस्त नाँ धरी काउंटर पाखक आसी भेटा को परामर्श देले। थरे दिथर तीन थर चारि थर घोषणा पर भी किसी लाभ हैलानी। केही जणे भी काउंटर पाखक आसिलेनी। काउंटर पाखरे छिड़ा हो माधव बाबू एबे कांद कांद अवस्था हो जाइतिले। मने मने कहले जगन्नाथे जेते बेले भी आसी सब बेले हैरान होइछि। एथर भी बड़ हैरान रे पकईदेले प्रभु। तुमको धिक ए नीलाचल धाम को धिक। जगन्नाथ आउ केबे तो दुआर माड़बीनि शपथ करुछि। परिवार को नहीं आसिली से माने बे कुआड़े गले मु जानिनी। जेतिकी पारिली सेतिकी कली। एबे आउ मु किछि करि परिबिनि। एबे तम हाथ रे सब किछि छाड़ीदेली महाप्रभु। तुमे जहा करिवो कर। एक कथा घरे बापा भाई जानिले मते केते कथा कहिबे। से सब आउ शुणी पारिबिनि। ट्रेन जाऊ मु किंतु मो परिवार बिना तो श्रीक्षेत्र छाड़ीबिनि। तू जहा करिवा कथा कर। ट्रेन छाड़ीबार समय पाखे आसथाए। माधव बाबू आखिरे भरी आसी थाए लुह। मनरे जगन्नाथ प्रति आहरी भरी जाए क्रोध घृणा। कौन करेंगे किसी बुझी पार नथांती माधव बाबू। आखिरे आखिए लुह। हाथ टेकिदेले प्रभु तो इच्छा। ट्राक उपरे थिबा ट्रेन गड़िबा आरंभ करने को घोषणा होउछि। एतिकी बेले किए जणे माधव बाबू पिठी रे हाथ मारले। कहले बाबू कुआडे जीव काहाकू खोजुछ। तांको अणदेखा करी ट्रेन को चाही मुहरे रुमाल पोछिले। ट्राक रे ट्रेन गड़िबा संकेत मिल सारी थाए। माधव बाबू अथय हो पड़ता। सबू जानी पुणी कहीं पुरी आसुले बोली निजको दोष देउथांती। पुणी से प्रश्न बाबू कुआडे जीव काहाकू खोजुछ। से एका प्रश्न शुणी विरक्ति हो उठिले माधव बाबू। पछकू चाही कहले जातु आपण कुआडे जीवी न जीवी आपणकर जानिबा किसी दरकार नाही। विरक्ति मिशा मुहरे अनेइले से लोकटाकू। से लोकटा मुहरे लाखिथिला धारे हस। दिशुथिला लाल ओठ ढीमा ढीमा आखि देहरे पड़िथिला कला बसन। एथर से लोकटा कहला व्यस्त हुअनी सबू ठीक हो जीव। ट्रेन रो शेष हर्न बाजिला। ट्रेन गड़िबा आरंभ कला। पुणी समान प्रश्न शुभिला बाबू कुआडे जीव काहाकू खोजुछ। एतिकी बेला निजको संभाली पारलेनी माधव बाबू। क्रोधरे गर्जिबा भली कहले हाँ हाँ मु तालचेर जीवी। मो परिवार को पाउनी। एइठी थिले कुआडे गले जे खोजुछि मिलुनाहांती। ए नीलाचल धाम आसी मनीष हीनस्ता हो गला। प्रश्न पर प्रश्न पचारि विरक्ति करुछ काहींकी। तमे आनी देई पारिबो सेई सुस्थ सबल लोकटा जेमिति एतिकी शुणिबा को अपेक्षा करथिले। बड़ धीरे कहले ओहो एई कथा पय एते व्यस्त। तुमको बारंबार पचारुछि तमे तो किछि कहून। हौ ट्रेन गड़िलाणी तमे जाओ। पुणी आसिले देखा हबो। मु एइठी अछि। आउ आंगुठी देखई देले ट्रेन रो शेष बगी आड़े जो ट्रेनटा तालचेर अभिमुखे गड़िबा आरंभ करथिला। माधव बाबू सियाड़ को चाहिए जोठी बगीर रेलिंग दे हाथ काढ़ी दुई भणजा डाक छाड़ते मामू मामू जल्दी आस। अरे ये कौन मु तो यही बगी दे केते थर चढ़िली आउ केते थर समस्त खोजिली से माने एइठी बसिथिले मु केमती देखि पारलिनी। मु आश्चर्यर कथा। ट्रेन गति धरिबा धरिबा होउथाए। माधव बाबू दौड़ी दौड़ी आसी बगीरे चढ़िले। बगीरे थाई लोकटा को चाहिए। से लोकटा आपणार परी हाथ हलैला। माधव बाबू भी हाथ हलै धन्यवाद देले। गोटे निश्वास रे भौणी पचारला भिड़ थिला कि टिकेट आणलु एते डेरी कौन है जे पानी आनीछु तो। माधव बाबू किसी उत्तर देवा अवस्था नथिले। खाली बल बल करी अनेई रही हाँ टे मारले। आ पचारे तमे मैंने सब एइठी थिलटी। भौणी कहला हाँ आम प्रथम तो यही बगीरे बसचु। माधव बाबू कहले यही बाटे केते थर गली मते देखिन। से माने ना कहले। समस्त को बड़ आश्चर्य हो चाहिए। आ बगी भर से लोकटा ठिया होइथिबा स्थान को निर्निमेष नयन अनाइले। स्टेशन रे काँ भा लोक थिले मात्र से लोकटा आउ देखा पाइलेनी। माधव बाबू कान रे एथर घंटा परी शुभिला
ସେଇ ଲୋକଟାର ଶେଷ କଥା ପଦକ। ହଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲାଣି, ତମେ ଯାଅ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖାହେବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ। ଦିଶିଗଲା ସେଇ ଲୋକଟିର ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଯାହାର ମୁହଁରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ଧାରେ ହସ, ଲାଲ ଓଠ, ଢିମା ଢିମା ଆଖି, ଦେହରେ କଳା ବସନ ଆଉ ଲମ୍ବା ଚୁଟି। ଏତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବଢ଼ି ସାରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ, ତମ ଲୀଳା ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ। ମୁଁ ହାରିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହାରିଗଲି, ତମେ ଜିତିଗଲ। ଏଇଠି ତମକୁ ଦଣ୍ଡବତ।